Hello students, this is the 7th video lecture of chapter 5, the fundamental unit of life, class 9 science. In this video lecture, we are going to talk about different cell organelles. These cell organelles are nothing but little structures, okay, present inside the cytoplasm, and they are basically responsible for division of labor. That means what? Ki cell performs different functions: respiration, excretion, other cellular activities, okay, providing energy, exchange of oxygen and carbon dioxide, exchange of waste, digestion of food, etc., etc. So these all things performed by a single cell, and the single cell consists of different cell organelles which performs particular function. So we would be seeing 6 different cell organelles apart from nucleus, which we have already discussed. Nucleus would also be included in cell organelles, but is different from these cell organelles because nucleus is the brain of the cell, is controlling the chemical activities. Okay, वो chemical activities को control कर रहा है, लेकिन chemical activities को perform कौन कर रहा है? Cell organelles. किस में रह के? Cytoplasm में रहकर. 6 different cell organelles you have already studied in class 8. You have already taken the introduction. Now furthermore increment or elaborate view of functions of each cell organelles. Okay, so we start with the first cell organelle, that is endoplasmic reticulum, which is also referred as ER, endoplasmic reticulum. See, endo means inside, plasmic you can understand from plasma membrane, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हो. रेटिक्यूलम मीन्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जो अपना नेटवर्क बना रहा है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहकर नेटवर्क बना रहा है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. दिस इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. अब ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, या तो वो राउंड, मतलब ये जो शेप है, जब ये नेटवर्क बनाते हैं ट्यूब्स की मदद से, शीट्स की मदद से, तो इनका शेप ट्यूब्यूलर फॉर्म में हो सकता है, राउंड हो सकता है, या ऑब्लॉन्ग हो सकता है. ऑब्लॉन्ग मतलब कुछ ऐसा, जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की कॉर्नर्स को हमने कर्व बना दिया, रेक्टेंगल्स की कॉर्नर को हमने कर्व बना दिया, तो दिस फॉर्म्स द ऑब्लॉन्ग शेप. ओके, सो ये जो ट्यूब्यूल्स है राउंड शेप, ट्यूब्यूलर फॉर्म में या ऑब्लॉन्ग फॉर्म में, ये नेटवर्क बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम 2 टाइप के होते हैं. एक होता है आर ER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. अब इसको रफ क्यों बोला गया? क्योंकि जब इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा, सो दे ऑब्जर्व प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड राइबोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेल्स which are responsible for protein synthesis. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं बोलूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या होगा, तो क्या बोलोगे? प्रोटीन सिंथेसिस. क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है which are ultimately responsible for protein synthesis. Okay, apart from this there is smooth endoplasmic reticulum. यानी अब रफ की जगह मैं सिर्फ क्या रिप्लेस कर दूंगी? स्मूथ. So smooth endoplasmic reticulum is responsible for production of lipids, fats, oils and some proteins in case. Okay, so ये सब जो चीजें हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है. Now, this was
मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, दैट मीन्स व्हाट, कि हम सेल मेम्ब्रेन को बना रहे हैं. यू कैन से बिल्डिंग अप ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन with the help of lipids and proteins. So proteins और lipids कहाँ से आ रहे हैं? लिपिड्स आ रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से. प्रोटीन्स कहाँ से आ रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है. एंड दीज राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से प्रोटीन्स आ रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से लिपिड्स आ रहे हैं. ये दोनों की मदद से there is the formation of cell membrane, and this process of formation of cell membrane with the help of lipids and proteins is known as membrane biogenesis. देखो, membrane पता चल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रहा है या सेल मेम्ब्रेन बन रहा है. बायो मतलब बायोलॉजी, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन. सो नेचुरली वे में, बायोलॉजिकली वे में सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ऐसा कह सकते हो बायो प्रोडक्ट्स. लिपिड्स और प्रोटीन्स क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स हैं, बायो प्रोडक्ट्स हैं, है ना. सो इनकी मदद से फॉर्मेशन हो रहा है किसका? मेम्ब्रेन का. कौन सी मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन का. सो दिस प्रोसेस यू हैव टू रिमेंबर. यू नो, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. सो यू शुड बी एबल टू, है ना. अपार्ट फ्रॉम दिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के अलावा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड टू फॉर्म सम एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, ये नेटवर्क कहाँ काम आता है? ये नेटवर्क बनता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म. मतलब अगर मान लो साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह कनेक्शन करना है, सो इट इज बिकॉज ऑफ आरईआर. और मान लो अगर बीच में न्यूक्लियस है, सो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म. जो कनेक्शन है that is because of the network formed by endoplasmic reticulum. So these were the functions, and these talks about the structure and types of endoplasmic reticulum. Okay, here liver cells in vertebrate. Vertebrates are the group of animals which are having vertebral column, backbone. Vertebral column अगर वो एनिमल के पास है तो वो ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स में आता है जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स. इनके जो लिवर सेल्स हैं, लिवर सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या काम करता है? तो डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स एंड पॉइजन्स. तो वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके पास लिवर सेल्स हैं. लिवर सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसका काम है डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स एंड पॉइजन्स. क्लियर? नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज लाइसोसोम. लाइसोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो जो भी मान लो फॉरेन मटेरियल है, फूड है, बैक्टीरिया है या कोई भी सेल ऑर्गेनल है जो काम का नहीं है, वोर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, मतलब या तो उसका लाइफ स्पान खत्म हो गया, उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो गई, अब जरूरत नहीं है, या तो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो खराब हो गया सेल ऑर्गेनल, तो वो वेस्ट है. वो सेल ऑर्गेनल, फूड, बैक्टीरिया, फॉरेन मटेरियल, ये सबको डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम. जैसे ही सेल के अंदर इनमें से कोई भी चीज दिखेगी उसको खा जाएगा. खाने में उसको मदद कौन करेंगे? इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स. So this can be referred as, lysosomes can be referred as waste disposal. These are for waste disposal. Okay. Now कुछ कंडीशंस ऐसी आती है सेल के अंदर जहाँ पे सेल अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, अपना मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता, यानी रिएक्शंस अच्छे से नहीं हो रही है सेल के अंदर. तब क्या होता है कि लाइसोसोम जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं. ऐसी कंडीशंस जब सेल फंक्शन नहीं कर पा रहा तब क्या होता है?
कि लाइसोसोम्स हैं सेल के अंदर वो बर्स्ट हो जाएंगे। तो लाइसोसोम के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या पूरे सेल में फैल जाएंगे और जो भी है सब खा जाएंगे, सेल का पूरा कंटेंट खा जाएंगे। इसलिए सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, ठीक है, सेल को खा गए, सेल के खुद के पार्ट ने ही सेल को खाया। ये लाइसोसोम उसी सेल का पार्ट था, ठीक है, उसी को खा गया। तो सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, लाइसोसोम्स आर रेफर्ड एज सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। समझ आया? दिस वाज ऑल अबाउट लाइसोसोम्स। वी टॉक अबाउट गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus में अंदर मेम्ब्रेन्स जो है वो स्टैक के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। तो गोल्जी apparatus के अंदर स्टैक के फॉर्म में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्न्स, ठीक है। ये कनेक्शन कराता है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी गोल्जी apparatus जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जैसे लिपिड है, प्रोटीन है, तो वो गोल्जी apparatus वो प्रोडक्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया उसको स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा और पैक करके वेसिकल के फॉर्म में निकालेगा। तो बैग में अगर पैक किया हुआ है कुछ भी सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं वेसिकल, ठीक है। बैग में अच्छे से जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोड्यूस किया, जिसका प्रोडक्ट था, उसको पहले स्टोर करेगा, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा। जैसे मान लो कि अगर कॉम्प्लेक्स शुगर आ रही है तो कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ना है इनटू सिंपल शुगर, तो ये काम करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उसको पैक करेगा, पैक कर रहा है और क्या बना रहा है, वेसिकल, उसको बोलेंगे वेसिकल। क्लियर? ओके। नाउ this Golgi apparatus, apart from this packing, storing and modification, is involved in formation of lysosomes, which are the suicide bags of cells, or we can say which are involved in waste disposal. ये remember, important point. Clear? Now, next is mitochondria. Powerhouse of the cell, energy currency of the cell is ATP. चलो ये तुमको याद है, एटीपी का फुल फॉर्म भी याद करना जरूरी है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, सेल में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज है उसको एनर्जी कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आ गया? बट यूनिट क्या है, पावर हाउस है, एनर्जी आ कहां से रही है, एटीपी से। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी दे रहा है, इसलिए ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। नेक्स्ट, न्यू केमिकल कंपाउंड्स और मैकेनिकल वर्क, जो भी हमारे बॉडी में नया नया कुछ बन रहा है या हम जो भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, रन, टॉक, एक्शंस, ठीक है, बैठना, उठना, खाना, पीना, सोना, जो भी है, जैसे मैकेनिकल वर्क हम कर रहे हैं, हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जब खाते हैं तो कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, ठीक है, कभी कुछ ब्रेन में कुछ सोच रहे हो तो कुछ और ही चल रहा है, नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड दे आर प्रोपगेटिंग, दैट इज दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये सब जो भी चीजें हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो 2 मेम्ब्रेन कवरिंग है। मुझे बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ऐसा और कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन है? राइट इन कमेंट बॉक्स। याद करो, हमने कोई ऐसा भी डिस्कस किया है जिसके पास, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स है, ऐसे उसके पास भी है। और आगे अभी हम प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स के पास भी 2 लेयर्ड यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं ये, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। इसके अलावा हमने एक और पढ़ा है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्या है तुम्हें पता चले तुम कमेंट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट, ये जो 2 मेम्ब्रेन है उसमें से जो आउटर वाली होती है वो पोरस होती है, यानी उसमें पोर्स है, होल्स प्रेजेंट है,
दूसरी होती है डीपली फोल्डेड। क्यों भाई डीपली फोल्डेड? डीपली फोल्डेड मतलब ये सपोज माइटोकॉन्ड्रिया, तो आउटर कवरिंग क्या है? पोरस, इसमें पोर्स प्रेजेंट होंगे, होल्स प्रेजेंट होंगे। इनर वाली जो है वो कुछ ऐसी होगी। देखो ये फोल्डेड है, मान लो जब मैं इसको निकाल के इसको सीधा करती हूँ ये बहुत लंबा बनेगा, यानी क्या कि इसकी सरफेस एरिया बहुत सारी है। सरफेस एरिया बढ़ गया यानी एटीपी जनरेशन बढ़ गया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एटीपी वो जनरेट कर पाएंगे, उतना ज्यादा एनर्जी वो दे पाएंगे। समझ आया? जितना ज्यादा फोल्डिंग होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया, है ना? तो फोल्डिंग ज्यादा तो सरफेस एरिया ज्यादा, इसके चक्कर में एटीपी ज्यादा, तो एनर्जी अल्टीमेटली ज्यादा। समझ आया? नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स क्यों कहा गया? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है। वैसे तो डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, और कोई सेल ऑर्गेनेल्स के पास डीएनए नहीं है। बट माइटोकॉन्ड्रिया बीइंग अ सेल ऑर्गेनेल इज हैविंग इट्स ओन डीएनए। तो अगर खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स भी है तो वो प्रोटीन्स भी बना रहा है, डीएनए भी बना रहा है खुद के, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेंज ऑर्गेनेल। ओके, सिमिलरली अगर मैं प्लास्टिड्स की बात करती हूँ तो प्लास्टिड्स भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, ठीक है, जब मैं बोलती हूँ सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन टू वेज। फर्स्ट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब क्या कि अगर इसके पास टू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ये, तो प्लास्टिड भी टू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। क्लियर? दूसरा, एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा प्लास्टिड्स के पास में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे खुद का डीएनए है और राइबोसोम्स है। क्लियर? जो प्लास्टिड्स हैं they are present only in plant cells. They are present only in plant cells. And there are two types, chromoplasts and leucoplasts. तो प्लास्टिड से आ रहा है। क्रोमो मतलब कलर्ड, कलर्ड प्लास्टिड्स को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको मतलब कलरलेस, ल्यूको मतलब कलरलेस, सो कलरलेस प्लास्टिड्स को हम कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। एक और होते हैं जिन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। आसान है, ऐसे प्लास्टिड्स जिसके पास क्लोरोफिल है। ठीक है, हमें पता है क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा प्लांट्स को। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट के पास येलो एंड ऑरेंज कलर के भी प्लास्टिड्स है, पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल तो एक पिगमेंट है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जिसके पास येलो और ऑरेंज कलर के भी पिगमेंट्स हैं। ओके, प्लास्टिड्स के अंदर स्ट्रोमा है। ये स्ट्रोमा जो है इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेनस लेयर्स होती हैं, वो आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। लेकिन स्ट्रोमा कभी पूछ ले कि स्ट्रोमा कहाँ मिलता है प्लास्टिड्स में, क्या है वो? मेम्ब्रेनस लेयर्स को, लेयर्स उसके अंदर है। स्ट्रोमा एक जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ऐसे स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेनस लेयर्स हैं, और ये स्ट्रोमा इज अ पार्ट ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, तो जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ऐसे स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेनस लेयर्स हैं, और ये स्ट्रोमा हमें कहाँ मिलेगा? प्लास्टिड्स में। ओके, ठीक है, और हमने ये तो डिस्कस किया कि वे प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे सिमिलर है। दो वेज में, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है,
Similarly, plastidase, apart from this, is having DNA, is having own DNA and ribosome. Okay. Lastly, we discuss about vacuoles. Vacuoles are known as storage sac. वो सॉलिड और लिक्विड दोनों को स्टोर करते हैं. कुछ सेल्स में एक्सेस वाटर को स्टोर करते हैं वैक्यूल्स, है ना, एक्सेस वाटर, और वेस्ट को भी स्टोर करते हैं. हालांकि लाइसोसोम्स का काम है वेस्ट को डिस्पोज करना, स्टोर करना वेस्ट का काम वो है वैक्यूल्स का. कोई कोई सेल में ही करते हैं, सारे सेल्स में नहीं. तो कुछ सेल्स में वैक्यूल्स जो है वो एक्सेस वाटर सेल के अंदर हो या तो एक्सेस वेस्ट हो तो वो उसको स्टोर करके रखेगा वैक्यूल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस फूड को स्टोर करते हैं. जैसे अमीबा के पास ऐसा वैक्यूल है जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, तो उसमें वो अपना फूड स्टोर करता है अमीबा. हाँ, फिर वैक्यूल्स का साइज एनिमल में छोटा होता है, एनिमल में स्मॉल, और प्लांट सेल में लार्ज साइज वैक्यूल्स होते हैं. प्लांट सेल में सेंटर में, सपोज अगर मैं प्लांट सेल बनाती हूँ तो इतना बड़ा तो उसका वैक्यूल बीच में होगा, न्यूक्लियस के साइड में होगा. ठीक है. ये जो दूसरी बाहर वाली बनाई वो था सेल वॉल, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन. दिस इज वैक्यूल, दिस इज वैक्यूल. तो वैक्यूल ज्यादातर सेंटर में होता है और वो 50 to 90% सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. सेल का जो वॉल्यूम है वो 50 से लेकर 90% तक ऑक्यूपाई करता है अगर वैक्यूल सेंटर में है सेल के. नहीं तो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जैसे ज्यादातर एनिमल सेल में होता है. ठीक है. दूसरा, वैक्यूल के अंदर क्या है? वैक्यूल के अंदर है सेल सेप. सेल सेप क्या होता है? सेल सेप होता है मिनरल्स जो प्लांट्स ले रहे हैं प्लस वाटर. मिनरल प्लस वाटर फॉर्म्स सेल सेप. तो ये सेल सेप वैक्यूल के अंदर होता है और ये प्लांट सेल को देता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो है वैक्यूल के पास होता है अमीनो एसिड्स, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स. तो इसे भी ये स्टोर कर सकता है. कौन कौन से सब्सटेंसेस को वैक्यूल स्टोर कर सकता है? अमीनो एसिड्स, देखो अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, शुगर्स. फूड स्टोर करता है, एक्सेस वाटर स्टोर करता है सम केसेस में. तो ज्यादातर वो अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, शुगर और प्रोटीन्स को स्टोर करता है. क्लियर? तो ये सब था वैक्यूल्स के बारे में, उसका फंक्शन क्या, स्टोर करता है. अगर सेंटर में आएगा वैक्यूल तो 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है. एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है. क्लियर? तो ऐसे 2-3 बार तुम ये रिपीट करोगे, एक बार ये लिखोगे तो ही याद रहने वाला है. सिर्फ देख के उड़ा दोगे, यू वोंट बी बेनिफिटिंग. ओके. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट गोल्जी अपैरेटस. गोल्जी अपैरेटस से मुझे याद आया, इसका नाम कैसे पड़ा? was discovered by Camillo Golgi. Camillo or Camillo, let me check the spelling. हाँ, सही है. तो Camillo Golgi, he performed staining. तो कुछ स्टेनिंग परफॉर्म की थी और he become famous for black reaction. तो आपका काम क्या है कि ब्लैक रिएक्शन क्या है? एक टेबल दिया है कैमिलो गोल्गी के बारे में, वो टेबल पढ़ो और पता लगाओ कि ये ब्लैक रिएक्शन क्या है. और ये कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया गोल्गी अपैरेटस कैसे, क्या उसने टेक्निक्स अप्लाई की, ये ब्लैक रिएक्शन क्या है. ठीक है. ये तुम सर्च करो, अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड करो. ठीक है. इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ.